Assalamualaikum class 9. What's cooking? No, I'm not asking that what's your mother cooking in your home. Actually, it's a smart casual phrase that means what's new or what's happening in your life. By the way class, today we are going to study and understand poem The Daffodils. Now come to page number 33. Class, The Daffodils is a lyric poem, and lyric is a short form of poetry, have rhythm and based on single thought. Class, this poem was inspired by an event in which William Wordsworth and his sister Dorothy came across a long belt of daffodils. It has 4 stanzas. What is stanza? Class, a group of lines in a poem is called stanza. Class, in this poem, each stanza has 6 lines, and the stanza which has 6 lines is called sestet. Sestet is a stanza which has 6 lines. Class, now I am going to read and explain this poem. Along with it, we will also do the analysis of this poem to understand some literary terms. First of all, we have the introduction of the poet. This poem is written by the famous English poet William Wordsworth. Who wrote this poem? William Wordsworth, who was an English poet. It means he belonged to England. He was born in the beautiful Lake District of England in the year 1770. In the year 1770, he was born where? In the beautiful Lake District of England. From his early days, he was very fond of flowers, birds, lakes, rivers, rocks and trees. When he was a child, he was very interested in natural things like birds, lakes, rivers, rocks and trees. He used to spend much time enjoying their beauty, and he spent his most of time in enjoying the beauty of these natural objects. He used to take long tours on foot and visit the beautiful natural scenes which he loved so much. He liked that natural scenes so much, so that's why he visited that places. He started a new kind of poetry written in simple words about natural objects and simple country people. He made an innovation in the poetry and started a new type of poetry in which he made the subjects of his poetry natural objects and simple country people. He died in 1850. He passed away in 1850. Now we have done the introduction and we are going to read the poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, neath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Class, it is the first stanza and it's an example of imagery. Class, what is imagery? Class, imagery is a vivid description that appeals to our 5 senses. Now see this. I wandered lonely as a cloud. यानी यहाँ पर एक विविड डिस्क्रिप्शन दी गई है एक नेचुरल सीन की. मैं फिर रहा था या बेमकसद जो है वो जा रहा था, अकेले जैसा के बादल. जिस तरीके से बादल जो है वो बेमकसद जो है वो फिर रहा होता है, इधर उधर जो है वो जा रहा होता है, इस तरीके से मैं जो है वो जा रहा था. लोनली एज अ क्लाउड. नाउ क्लास, लोनली एज अ क्लाउड यहाँ पर जो है वो एक सिमिलैरिटी जो है वो बयान की गई है. लोनली, अकेले जैसा के बादल, जिस तरीके से बादल जो है वो तन्हा फिरता है. तो क्लास, जहाँ पर हमारे पास एज या लाइक आ जाए
और उसमें जो है वो किसी दो चीज़ों के दरमियान जो है वो सिमिलैरिटी जो है वो बयान की जा रही हो, तो इसको कहा जाता है सिमिली। सिमिली मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विथ लाइक और एज विच आर अपरेंटली अनलाइक बट हैव सिमिलर क्वालिटीज। अपरेंटली जो अनलाइक हो, बज़ाहिर देखने में हमें लगता हो कि ये एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, जैसे कि पोएट और बादल, दे आर अपरेंटली अनलाइक, लेकिन इनकी क्वालिटीज सिमिलर हैं, यानी इनका जो काम है वो सिमिलर है। क्या कि दोनों जो बादल जो है वो अकेला फिरता है, वैसे पोएट जो है अकेले जो है वो फिर रहे थे। नाउ नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सिमिली। That floats on high over vales and hills, जो कि तैरते रहते हैं ऊपर वैलीज के और हिल्स के ऊपर। When all at once I saw a crowd, और इसी दौरान जो है वो अचानक से मेरी नज़र जो है वो एक जो है वो क्राउड पर पड़ी। क्लास 100 से मुराद ये कि अगर जो है वो अनइंटेंशनली या अनएक्सपेक्टेडली जो है वो किसी चीज़ पर जो है वो नज़र पड़ जाए। A host of golden daffodils, और उनको क्या नज़र आया? होस्ट की मीनिंग है यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। क्लास डैफोडिल्स जो होते हैं वो एक जो है वो येलो जो है वो फ्लावर्स होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्लावर विच इज़ येलो इन कलर। और आपके बुक में पेज नंबर 34 पर जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि विच काइंड ऑफ फ्लावर इज दिस। और अचानक उनकी नज़र जो है वो बहुत सारे डैफोडिल्स पर पड़ती है बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। और वो डैफोडिल्स जो है वो कहाँ थे? लेक के बिसाइड यानी नेक्स्ट टू लेक थे, और वो जो है वो अंडर नेट द ट्रीज थे, यानी कि जो है वो दरख्तों के जो है वो नीचे थे। फ्लोटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो जो है फ्लोटिंग से मुराद यहाँ पर ये है कि मूव करना, यानी हवा की वजह से जो मूवमेंट जो है वो उनको हो रही थी, उनको जो है वो फ्लोटिंग कहा गया। एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो डांस कर रहे थे ब्रीज में। क्लास ब्रीज से मुराद होती है ठंडी खुशगवार हवा। नाउ कम टू सेकंड स्टैंजा। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Class, here we have another simile, continuous as the stars that shine. And this line, the poet compared the डैफोडिल्स विद द स्टार्स, कि वो बिल्कुल इतने ज़्यादा जो है वो कंटिन्यूस यानी इतनी ज़्यादा तादाद में थे जैसे कि आसमान पर सितारे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे कि सितारे चमकते हैं मिल्की वे पर, वो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो ब्राइटली जो है वो नज़र आ रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो ताहदे निगाह जो है वो फैले हुए थे अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। मार्जिन कहते हैं क्लास जो किसी बे की जो बाउंड्री होती है उसको मार्जिन कहा जाता है, और बे जो होता है वो एक स्मॉल पार्ट होता है सी का। 10,000 saw I at a glance। क्लास पोएट ये कह रहे हैं कि वो जो है वो एक ग्लांस में यानी एक नज़र में जो है वो इतने ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में थे कि एक नज़र में वो 10,000 जो है वो नज़र आ रहे थे। क्लास यहाँ पर एक बात समझने की है कि यहाँ पर पोएट जो बात कह रहे हैं कि एक नज़र में 10,000 जो है वो नज़र आ रहे थे, तो यहाँ पर ये चीज़ अनरियलिस्टिक है, क्योंकि हमारे आइज़ की रेंज जो है वो इतनी नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो एक ग्लास में थाउजेंड्स जो है वो हम जो है वो देख सकते हैं। क्या मतलब हम जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं देख सकते एक ग्लांस में। तो यहाँ पर पोएट जो है वो क्या कर रहे हैं? एग्जैजरेट कर रहे हैं, यानी अपनी बात को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। और जो इस किस्म की पोएट्री या लिटरेचर में जो ओवर एग्जैजरेशन की जाती है, जो कि अनरियलिस्टिक जो है वो लगता है, उसको जो है वो हाइपरबोली जो है वो कहा जाता है। हाइपरबोली किसे कहा जाता है? ओवर एग्जैजरेशन को।
टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो अपने हेड्स को इस तरीके से जो है वो टॉस कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, जैसे वो बहुत लाइवली सा कोई जो है वो डांस कर रहे हों. नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोले. नाउ स्टैंजा नंबर 3. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Class, the waves beside them danced, but they, क्योंकि जैसे कि आपने ऊपर जो है वो देखा कि जो डैफोडिल्स जो थे वो बिसाइड द मार्जिन ऑफ अ बे, यानी के जो एक बे के जो है वो किनारे थे, तो जो बे थी यानी जो पार्ट ऑफ द सी था उसके अंदर जो है वेव्स थी वो भी डांस कर रही थी. अब यहाँ पर जो है ये ऊपर इन्होंने जो है वो डैफोडिल्स के हवाले से जो है वो बयान किया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वे क्लाउडली डांस कर रहे हैं. यहाँ पर ये वेव्स के हवाले से जो है वो कह रहे हैं कि वो डांस कर रहे हैं. लेटर ऑन आई विल टेल यू कि पोएट जो है वो जब इस किस्म की जो है वो चीज़ें जो है वो इससे रिलेट करते हैं, जैसे डांसिंग ये ह्यूमन ट्रेड्स हैं, तो इसको जो है वो क्या कहा जाता है. बाय द वे, तो वेव्स जो थी वो भी डांस कर रही थी बे में, यानी जो अपना पार्ट ऑफ द सी था उसके अंदर. आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन ये जो थे डैफोडिल्स, बट दे, ये उनसे बेहतर कर रहे थे उन लहरों से जो कि खुशी में जो है वो मतलब डांस कर रही थी, तो उनसे ज़्यादा बेहतर ये डैफोडिल्स कर रहे थे. A poet could not but be gay, और इन तमाम चीज़ों को देखकर एक शायर जो है वो और कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो लाइवली हो जाए. क्लास, एक जो पोएट की जो फीलिंग्स होती हैं वो एक आम इंसान से मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि वो हर चीज़ का जो है जो मुशाहिदा कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गौर से जो है वो उस चीज़ को जो है वो देख रहा होता है. वो सिर्फ उस चीज़ को ज़ाहिरी तौर पर नहीं देख रहा होता, बल्कि उसके अंदर मतलब जितनी भी उसकी जो खूबियाँ होती हैं और उनको जो है वो आप कह लें कि उनके ऊपर एक शायराना निगाह जो है वो डाल रहा होता है, ताकि वो उनको अपने वर्सेस में जो है वो ब्यूटीफुली जो है वो कंपोज कर सके. इन सच ए जोगन कंपनी, और इस कदर जो है वो लाइवली कंपनी में जो है वो पोएट क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा जो है वो भी लाइवली हो जाएगा. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं उनको देखे जा रहा था. गेज्ड मतलब कि स्टेयरिंग, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो उसको नज़र टिका कर किसी चीज़ को देखना. और मैं सोच भी रहा था व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो शो है, ये जो पूरा जो सीन है, ये मुझे जो है वो क्या जो है वो दौलत जो है वो दे रहा है, इससे मुझे जो है वो क्या दौलत जो है वो मिल रही है. क्लास, यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्टैंजा नंबर 1 में भी आया है फ्लोटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यानी डांसिंग यानी डैफोडिल्स के वजह से कहा गया कि दे वर डांसिंग. और हमारे पास स्टैंजा नंबर 2 में भी आया है टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, तो इसमें भी जो है वो कहा गया है डैफोडिल्स को कि दे वर डांसिंग. और फिर इसके अलावा हमारे पास स्टैंजा नंबर 3 में वेव्स के हवाले से आया है कि दे वर डांसिंग इन ग्ली, इन द वेव्स वर डांसिंग इन हैप्पीनेस. जैसा कि मैंने आपको बताया कि डांसिंग जो है वो क्या है कि ह्यूमन ट्रेट है, एक एक्शन है विच कैन ओनली बी डन बाय ह्यूमन बींग्स. तो ऐसी चीज़ें, ऐसी ट्रेड्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से जो है वो रिलेट कर देना, ताकि जो है वो बात में खूबसूरती पैदा हो, इसको जो है वो पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सपोज नहीं किए जा सकते कि ये एक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, उनसे जो है वो इन चीज़ों को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को जो है वो रिलेट कर देना, ये पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है कि डैफोडिल्स डांस कर रहे थे. दे कांट डांस, दे कैन मूव बट दे कांट डांस. वो हम उसको जो है वो उससे रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरीके से वो मूव कर रहे थे, इट सीम्स लाइक दैट दे आर डांसिंग, लेकिन असल में ये एक ऐसा एक्शन है जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स कैन परफॉर्म. नाउ कम टू पेज नंबर 34 और लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 4. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils.
Class, the poet is saying here that for oft यानी अक्सर ऑफन जब मैं अपने काउच पर जो है मैं लेटा करूँगा इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, यानी मैं बिल्कुल मेरे दिमाग में और कोई जो है वो सोच नहीं होगी और मैं जो है लेकिन मैं थॉटफुल मूड में हूँगा। वैसे कोई मतलब कोई और कोई वरी कोई परेशानी कोई ऐसी चीज़ सोचने के लिए नहीं होगी, लेकिन पोएट का जो मूड हो रहा होगा वो उस वक्त हो रहा होगा पेंसिव यानी सीरियसली थॉटफुल मूड हो रहा होगा। तो ये जो डैफोडिल का सीन है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो जो है वो मेरी आंखों के सामने आ जाएगा, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और इस तरीके से जो है वो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड जो है वो हासिल हो जाएगा। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड क्या होता है, यानी तन्हाई में जो हमें सुकून मिलता है, द जॉय ऑफ बीइंग अलोन, यानी जब हम अकेले होते हैं हमें जो मतलब सुकून हमें जो है वो मिल रहा होता है, उसको ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड कहा जा रहा होता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा जो दिल है वो खुशियों से भर जाएगा और वो डांस करने लगेगा, किसकी तरह, डैफोडिल्स की तरह। और यहाँ पर इन्होंने कहा है डांसेस विद द डैफोडिल्स, यानी उनकी जो माइंड में जो वो रिकॉल कर रहे होंगे मेमोरी, तो उनके जो माइंड में जो डैफोडिल्स आ रहे होंगे इसी तरीके से डांसिंग, तो उनका दिल भी उसी तरीके से जो है वो डांस करना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है क्लास, नाउ वी हैव डन द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। क्लास, वी अंडरस्टूड 3 लिटरेरी टर्म्स इन दिस पोएम एंड दैट इज सिमिली, हाइपरबोली एंड पर्सोनिफिकेशन। They are either called figurative language or literary devices, or you can say that literary terms. Literary devices are technically used terms in literature, जैसे जो कि technically जो है वो यूज़ की जाती हैं ताकि जो है वो अपनी बात को कन्वे कर सकें, जो पोइट है या जो ऑथर है वो अपनी बात को जो है वो खूबसूरती से क्या कर सके, कन्वे कर सके। प्लस और जो यू कैन ऑल्सो कॉल इट फिगरेटिव लैंग्वेज। प्लस फिगरेटिव लैंग्वेज वो होती है जिसमें हमारे पास जो है वो मीनिंग बियॉन्ड वर्ड्स जो है वो आ रही होती है, यानी मीनिंग जो है वो नहीं आ रही होती जो हमें उसकी लिटरेरी मीनिंग होती है, बल्कि उसकी जो है वो मीनिंग जो है वो हमारे पास कुछ और आ रही होती है। और फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ करने का पर्पस क्या है, वाई पोएट्स एंड ऑथर्स यूज फिगरेटिव लैंग्वेज, बिकॉज फिगरेटिव लैंग्वेज क्रिएट्स ब्यूटी इन लैंग्वेज। ये जो है वो बात में बयान में जो है वो खूबसूरती जो है वो पैदा कर देती है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने कहा कि टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, के वो इस तरीके से जो है वो अपने हेड्स जो है वो टॉस कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे कि जैसे वो कोई बहुत लाइवली सा जो है वो डांस कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है इससे मतलब बात में खूबसूरती पैदा हो रही है। और इसके अलावा जैसे कि हमारे पास जो है वो सिमिली यानी बयान की गई है कि डैफोडिल्स बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान पर सितारे, तो इससे जो है वो खूबसूरती जो है वो बात में जो है वो पैदा हो रही है। एंड इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑन आवर सेंसेस, ये जो है जैसे कि इस पोएम में मैंने आपको बताया कि ये एक टाइप की जो है वो विविड डिस्क्रिप्शन है, एक इमेजरी है जो कि हमारे 5 सेंसेस को जो है वो अपील कर रही है, यानी हमारे 5 सेंसेस को अपनी तरफ जो है वो मतवज्जा कर रही है। जैसे कि इसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सीन्स हमें बताए जा रहे हैं और हम अपने माइंड में उन तमाम चीज़ों को जो है वो इमेजिन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जो सिमिलीज जो हैं वो दी जा रही हैं और जो पर्सोनिफिकेशन जो है वो की जा रही है, इसमें हम अपने तमाम सेंसेस जो है वो इस तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जब हम डैफोडिल्स के हवाले से जब हम सोच रहे हैं, उसकी सीनरी के हवाले से जब हम सोच रहे हैं कि वो कितना पिक्चरस जो है वो सीन होगा जहाँ से पोएट जो है वो गुजर रहे थे, तो इन तमाम बातों को इमेजिन करने में अपने सेंसेस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ फिगरेटिव लैंग्वेज जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे सेंसेस पे। और क्लास, ये जो चीज़ होती है कि हमारे सेंसेस पे किसी चीज़ का जो इन्फ्लुएंस कर जाना, फिर इससे हमारी माइंड की क्या होती है, ग्रोथ होती है। एक पॉजिटिव वे में जो है वो हमारा माइंड जो है वो बढ़ रहा होता है कि जिस तरह हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, इस तरीके से हमारा माइंड भी जो है वो ग्रो कर रहा होता है। और जब उसको मतलब जो है वो ऐसी आप कह लें कि ब्यूटीफुल जो है वो
चीज़ें जो है वो मिलेंगी ग्रो करने के लिए, यानी सोचने के लिए, तो इसकी जो क्या होती है एबिलिटीज जो है वो इंक्रीज होती है। दैट्स वाई वी स्टडी लिटरेचर, दैट्स वाई वी स्टडी पोएट्री, क्योंकि ये तमाम चीज़ों का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम जस्ट उसको जो है वो पढ़ लें या रीड कर लें या हम उसकी क्रैमिंग करके उसको जो है वो पेपर दे दें। ये हमारे जो है वो सोचने के तरीके को जो है वो इन्हेंस करती है, उसके अंदर जो है वो खूबी पैदा करती है। नाउ क्लास, we have completed the explanation of chapter daffodils. See you in the next chapter.